So the first topic is related to the pangolins, isn't it? So you've seen pangolins before. पहले देखा है कभी? Okay. So what is important about them? See, there are two things. One is ये जो घूम जाते हैं ना, the way they bind themselves. So this makes easy for the poachers to carry them. They don't bite. And अगर आप उनको हाथ में लोगे तो they will just roll. So it's very easy to carry them, first of all. Second, their keratin shells. This is because they are poached. So कोई भी animal का अगर question आए mains examination में या prelims में and they are asking you why they are poached, for example, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने कि why they are poached. So first is the shell. So इस shell से क्या बनेगा? There are leather goods like bags, belts, and obviously boots. और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि why they are poached? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देख के मत बताओ, वो तो है ही आपके पास, थोड़ा दिमाग लगाओ. ओके सो हाँ उसमें लिखा हुआ है, बाद में पढ़ोगे तो मिलेगा. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. सो पैंगोलिन्स के बारे में ये बोला जाता है कि इनके बॉडीज में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज को क्योर कर सकते हैं. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये हमेशा पार्ट रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडो चाइना. I don't know what's happening with this. Now tell me, what is Indochina? Anyone? What do you mean by all Indochina? Only Vietnam is Indochina. See, there is one peninsula. ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आपको उसमें भी काम आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में. So we call it Malay Peninsula. ये नोट करते रहो थोड़ी छोटी छोटी बातें. So what is Malay Peninsula? So in the Malay Peninsula we have some countries, like first country is Myanmar, then you have Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam. ठीक है. This side we have India. So why this is called peninsula? Because three side water guided है. This side you have Gulf of Thailand, this is Arabian Sea and this is South China Sea. ठीक है, नीचे भी South China Sea है. This is called Malay Peninsula. So the countries are Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. And these countries are known as Indochina. ठीक है, इसमें मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया नहीं आता है. ओके सो पैंगोलिन्स जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, they are always a part of India and Indochina. टोटल 8 स्पीशीज होते हैं इनके. ठीक है, 4 स्पीशीज आर एशियन एंड 4 आर एक्चुअली अफ्रीकन. तो इंडिया में 2 स्पीशीज पाए जाते हैं, इंडियन पैंगोलिन्स एंड चाइनीज पैंगोलिन्स. ओके, चाइनीज पैंगोलिन्स आपको ये चाइना, वियतनाम इन जगहों पे मिलेंगे. And pangolins are also eaten here in Indochina, not in India, but in Indochina. They are regarded as delicacies. इसका मतलब जब कोई त्योहार होता है, कोई celebration होता है, they eat pangolins. It is the part of their food chain. Okay. And one more important thing which is not in your handout. Pangolins का जो ये keratin shell है, अगर उसको मार देते हैं ना तो keratin shell खराब हो जाता है. So what these guys do to have the fresh keratin cell, live pangolins को boil water में डाल देते हैं. So animal cruelty भी है poaching के साथ साथ in regard to pangolins. That is why it becomes an important topic. Okay, so environmental degradation के साथ साथ ethical issues भी है because live pangolins को they are immersing in the boiling water and that is how they take out the fresh keratin cells of pangolins. Okay, so medicinal values, delicacy, food item and commercial item इससे बना सकते हैं. That is why they are poached. Important thing क्या है in regard to the prelims examination? Prelims examination के लिए आपको याद रखना है कि
WPA वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस एक्ट में दे आर प्लेस्ड इन शेड्यूल 1. ओके, सो व्हाट इज शेड्यूल 1? आप देखो आपके हैंडआउट में नीचे लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. बोथ इंडियन पैंगोलिन्स एंड चाइनीज पैंगोलिन्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1. लेकिन शेड्यूल 1 क्या होता है ये नहीं लिखा है, वहां लिख लो. शेड्यूल 1 में जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब हिंदी में नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग. सो शेड्यूल 1 में जितने भी एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल्स should be rigorously conserved and protected. So you can write Schedule 1 covers endangered species. Schedule 1 covers endangered species that need rigorous protection. That needs rigorous protection. Can anybody tell me something about Wildlife Protection Act 1972? Anything you know about Wildlife Protection Act 1972? No? Okay. So Wildlife Protection Act 1972 is the first piece of legislation in India after independence, which is in regard to environment. So environment के regard में इससे पहले कोई एक्ट पास नहीं हुआ था. दिस इज द फर्स्ट एक्ट passed by the Parliament of India in regard to environment after independence. Wildlife Protection Act 1972. 1972 का और भी सिग्निफिकेंस है माय डियर. वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर एक चीज लिखी है जिसका नाम है पैन, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. ठीक है, और पहले सुन लो, यू विल गेट द नोट्स और आई विल डिक्टेट एंड यू कैन राइट. प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर ही देयर आर डेफिनेशंस रिटन अबाउट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स. ओके, इसका मतलब है 1972 के पहले इंडिया में कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था. ओनली आफ्टर 1972, seeing this definition, states and central governments have made national parks. So the first national park in India under the Wildlife Protection Act 1972 was Jim Corbett, Ramnagar, Bareilly, Nainital. Okay, so before this act there were no definitions. कैसे था? रिजर्व फॉरेस्ट, कंपनी बगान, नेहरू फॉरेस्ट, इंदिरा पार्क, इस तरह नाम था. जो एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो WPA एक्ट से ही आया है 1972. और ये एक्ट इंडिया ने पास क्यों किया? इसी साल 1972 में there was a big event, Stockholm Convention 1972, United Nations Convention on Human and Environment. ठीक है, उसका पूरा नाम है स्टॉकहोम, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बिकॉज वो स्टॉकहोम में हुआ था इन स्वीडन. तो वहां पर डिसाइड हुआ कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अब कुछ करना पड़ेगा. लुक एट द ईयर 1972. 72 के पहले फ्रॉम 1947 या 1945 टिल 1970s बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला है फॉरेन कॉलोनीज से आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. एंड जब भी कोई नई कंट्री आजाद होती है, फ्री होती है, तो उसके बाद क्या उसका एम होता है? नॉर्मल चीज है, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, एग्रीकल्चर, है ना, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब होता है. जब ये हो जाता है तब कंट्रीज को ध्यान में आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एंड यूनाइटेड नेशंस इन 1960s डिसाइडेड कि सी आई हैव एवरी ऑर्गन टू मैनेज एवरीथिंग. I have ILO, International Labour Organization, to manage the labor issues. I have UNICEF to manage the children issue. I have UNESCO to manage the cultural and scientific issue. But I do not have an organ which can see the environmental protection concern. And that is why United Nations called this meeting in 1972 in Stockholm Convention. और वहाँ पे ही they launched a super program, UNEP, United Nation Environment Program, in 1972. इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट also passed a act in the Parliament, Wildlife Protection Act. इसके बाद ही Schedule 1 में जो हम बात कर रहे थे जिसके बारे में,
स्केड्यूल 1 में जिस भी एनिमल का नाम लिखा रहेगा, अगर उसकी हंटिंग और पोचिंग होती है, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, नॉट सिविल ऑफेंस, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो ये पूरी कहानी है उसके पीछे। ओके, सो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि स्केड्यूल 1 का मतलब क्या है, या फॉर एग्जाम्पल सम न्यू एनिमल हैज बीन एडेड टू स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 1 कौन से एक्ट के अंदर है, उस एक्ट के अंदर और एक नाम है पैन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उसी के अंदर आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबकी डेफिनेशंस है। सो दिस एक्ट इज अ लैंडमार्क एक्ट एंड इट इज द फर्स्ट एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन रिगार्ड टू द एनवायरनमेंट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस आइडिया से भी आंसर कर सकते हैं अगर बैकग्राउंड क्लियर है। दूसरा, पैंगोलिन्स आर आल्सो नेम्ड एज अ प्रोटेक्टेड एनिमल इन साइट्स, CITES, देखो आपके हैंडआउट में लिखा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द साइट्स, कैन एनीवन टेल मी? एंडेंजर्ड स्पीशीज, वेरी गुड। तो नाम से ही इसका ऑब्जेक्टिव पता चल गया। तो कब फॉर्म हुआ था? 1967 में IUCN की एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इसको फॉर्म करना चाहिए। अब IUCN क्या है वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। सो IUCN की मीटिंग में इट वाज डिसाइडेड दैट साइट्स शुड बी फॉर्म्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो रोकना पड़ेगा, बिकॉज इफ एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द इकोसिस्टम बैलेंस विल बी लॉस्ट। सो दिस वाज देयर एम। ओके, नाउ IUCN के रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है इंडियन पैंगोलिन का, व्हाट इज दैट? देखो लिखा हुआ है, मार्क करो, साथ साथ पढ़ लो नोट्स। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो हु गिव्स दिस स्टेटस? IUCN लिखा है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। व्हेन वाज IUCN फॉर्म्ड एंड IUCN का क्या ऑब्जेक्टिव है? सुन लो ध्यान से, लिसन टू इट। IUCN is the oldest organization in the world in regard to environment protection. Oldest and the first organization. It was formed in 1947. 46, sorry. 1946 IUCN was formed. Oldest organization है, independent organization है, voluntary contribution world के scientists से लेता है एंड डिफरेंट कंट्रीज को बताता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने हिसाब से पॉलिसी बना के इसको सॉल्व कर लो, ये इसका काम है। एडवाइजरी बॉडी है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है टू डिफरेंट कंट्रीज एंड नेशनल गवर्नमेंट्स। ओके, 1946 में इसके फॉर्मेशन जब हुआ, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, GLAND। इसको उल्टा कर देंगे, 46 से आ जाओ 64 में। लैंडमार्क चीज इन्होंने की है जो आज तक चल रही है। 64 में दे लॉन्च्ड रेड डेटा बुक, जिसको आप रेड लिस्ट भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, रेड डेटा बुक। सो हु लॉन्च्ड द रेड डेटा बुक? IUCN। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ओके, सो IUCN ने लॉन्च किया 1964 में रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड वायरसेस, 3 कैटेगरी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वायरसेस की काउंटिंग होती है दुनिया भर में, ठीक है। एंड दे गिव यू नंबर्स। फॉर एग्जांपल दे विल टेल यू टाइगर के पॉपुलेशन का ओनली 2500 टाइगर्स आर लेफ्ट। सो 2500 लेफ्ट है तो उसको स्टेटस दे दिया एंडेंजर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का पॉपुलेशन वाइल्ड में अवेलेबल नहीं है बट दे आर सीन इन जू, तो उनको बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। कंप्लीटली अगर गायब है तो एक्सटिंक्ट बोल देते हैं। अगर किसी एनिमल का अभी ठीक ठाक है पॉपुलेशन और इतनी कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, तो दे गिव द स्टेटस ऑफ लीस्ट कंसर्न। किसी का डेटा अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से, सो दे गिव द स्टेटस डेटा नॉट एडिक्वेट। और बहुत ही मुश्किल है, मतलब अराउंड 175-200 स्पीशीज आर लेफ्ट वर्ल्ड वाइड, देन दे गिव द स्टेटस ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद और कुछ नहीं होता, एक्सटिंक्ट होता है, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न,
ये सारे जो स्टेटस है ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? रेड डेटा बुक में, और ये दे रहा कौन रहा है? IUCN. सो दिस इज द चैनल. ठीक है, तो IUCN ने पैंगोलिन्स को क्या स्टेटस दिया? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब इनकी स्पीशीज का पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट के पास है. अगर कंजर्व नहीं किया गया तो वी विल लूज देम फ्रॉम द इकोसिस्टम साइकिल. एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके बारे में कंसर्न है, जिसकी वजह से ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रैफिक. TRAFFIC. फुल फॉर्म लिख लो. ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस. ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस in flora and fauna. Trade record analysis of होगा of flora and fauna in commerce. In commerce traffic. ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो आप नाम देख रहे हो, नाम से ही आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा. ट्रेड एनालिसिस करती है किसका? फ्लोरा एंड फौना का. कहां पर? इन कमर्शियल वे. सो पैंगोलिन्स का भी जो कमर्शियल ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोचिंग अचानक से शुरू हो गई है. सो स्टेट्स लाइक ओडिशा, महाराष्ट्र, जहाँ पे पैंगोलिन्स मिलते हैं वहां पोचिंग देखी जा रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द थिंग. सो WPA एक्ट इसका मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैंगोलिन्स. सो पैंगोलिन्स से रिलेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है. WPA एक्ट, IUCN, रेड डेटा बुक. ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर किधर है? और WPA क्यों बना था? क्योंकि एक कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में स्टॉकहोम में, और वहीं पे एस्टैब्लिश हुआ था UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया, नैरोबी में. इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है. ये 72 में लॉन्च हुआ था, बट स्टिल इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. देन लेट अस मूव टू द न्यूज नंबर 2. सो न्यूज नंबर 2 इज रिलेटेड टू एलियन प्लांट्स. ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इनको बोलते हैं. सी, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कंसर्न में क्यों रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोरल रीफ्स. ध्यान से सुनना. सो कोरल ब्लीचिंग के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड. व्हाट आर कोरल रीफ्स? एनीवन? ट्राई दे सकते हो. कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स होते हैं. यस, वेरी गुड. सो दे आर द कोरल पॉलिप्स. दे आर नथिंग बट जूजांथले. ठीक है, दे आर प्लैंक्टन्स. ठीक है, जू प्लैंक्टन्स बोल सकते हो. तो प्लैंक्टन्स आर those marine animals which cannot move. मोबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, मरीन रिसोर्सेज 3 तरीके के होते हैं: प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन्स एंड बेंथोस. प्लैंक्टन्स जो मूव नहीं कर सकते, मोबिलिटी नहीं होती है. नेक्टॉन्स आर स्विमर्स एंड बेंथोस जो बिल्कुल सी बेड, बिल्कुल डीप ऑफ द सी पे रहते हैं. ये 3 कैटेगरी है मरीन एनिमल्स की. अब जो प्लैंक्टन्स है हमारे, उसमें 2 तरीके के प्लैंक्टन्स होते हैं: फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब प्लांट्स, जूप्लैंक्टन्स मतलब एनिमल्स. एनिमल्स में भी मोबिलिटी नहीं होती है. सो दीज एनिमल्स आर नोन एज कोरल पॉलिप्स. ये क्या करते हैं? कॉलोनीज बनाते हैं, सी वाटर से ही कैल्शियम उठाते हैं, उसी से उनका स्केलेटन बनता है. ओके, एंड देन दे ईट द सीवीड्स, नियर बाई फिशेज. इनके टेंटैकल्स होते हैं. दीज टेंटैकल्स कैच द फिश, कैच द सीवीड एंड ईट. बट कोरल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? कोरल आइलैंड्स, जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये पॉलिप्स जो होते हैं, दे हैव द नेग्लिजिबल एडेप्टेशन फैसिलिटी. मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया इनटू दिल्ली, बट दिल्ली में आप एडेप्ट हो जाते हैं. थोड़े दिन बाद यू स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ. एडेप्टेशन कर लिया आपने. कोरल पॉलिप्स का क्या है? दे नीड अ सर्टेन टेम्परेचर टू थ्राइव, 20 डिग्री टू 23 डिग्रीज. अगर टेम्परेचर 24, 25, 26 भी हुआ, 1 डिग्री से भी बढ़ा, इनको स्ट्रेस हो जाता है एंड दे ब्लीच, दे डाई डाउन. इसका मतलब क्या है? एडेप्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. अगर टेम्परेचर में, सैलिनिटी ऑफ वाटर में थोड़ी भी चेंजिंग आई, फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा हो गया या सलाइन वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा हो गया, दे विल डाई. एंड एडेप्टेबिलिटी 0 है. बट
इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की एडेप्टेबिलिटी सुपर है, किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी फूड हैबिटेट में, किसी भी सॉइल में, कहीं पे भी एडप्ट कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई ग्रोथ होती है इनकी, मतलब कहीं भी आप इनको इंट्रोड्यूस कर दो. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका की किसी डेजर्ट का स्पीशी है, इंट्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल सुंदरबन, दे विल ग्रो and they will grow in masses and capture the whole ecosystem. That is why they are known as invasive alien species. अब इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहाँ से आए? देखो फ्लड होता है, डिफरेंट कंट्रीज से रिवर्स आती हैं, इरावदी रिवर खत्म हो रही है बे ऑफ बंगाल में कमिंग फ्रॉम म्यांमार, डिफरेंट रिवर्स कमिंग फ्रॉम नेपाल एंड क्रॉसिंग उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड कमिंग टू इंडिया, मेनी रिवर्स, बांग्लादेश में हमारी रिवर्स जा रही है. फ्लड के कारण कुछ स्पीशीज दूसरे टेरिटरी में आ जाते हैं, फर्स्ट. सेकेंड इज दे फ्लाई एंड दे कैन कम. कोविड के टाइम पे एक न्यूज सुना होगा, लोकस्ट, ठीक है, छोटे छोटे जो फ्लाइज हैं वो आपके क्रॉप्स को अटैक करते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज. अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीज लाइक इंडिया, दे वर द कॉलोनीज ऑफ फॉरेन पावर्स. सो जब वो लोग आए तो अपने साथ अपने जगह के स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, उनको कोई एक पर्टिकुलर प्लांट पसंद है, उन्होंने वो प्लांट लाकर यहाँ पर लगा दिया एंड दे कैन बी इन्वेजिव, उन्होंने पूरा कॉलोनी ही बना लिया. सो इस तरीके से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आ सकते हैं. तो व्हाट दे आर good for the environment also and they are bad for the environment also. Bad because they destroy the natural habitat and occupy. Good because they have the adaptability, they have the adaptation capacity. So कभी भी extinct नहीं होंगे, ज़्यादा आप उनको conserve या protect करने की ज़रूरत नहीं है. They can give the green cover anytime, anywhere and they can multiply on their own. So they have both pros and cons. ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में दीज मेनी स्पीशीज आर इंक्रीजिंग एंड दीज मेनी स्पीशीज आर बिकमिंग एलियन इन्वेजिव. सो इसलिए ये वाला न्यूज हमने डिस्कस किया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्लाइमेट चेंज. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस एंड डैमेज फंड. देखो इस टॉपिक के पीछे भी काफी सारा हिस्ट्री है. So we have done all this, pangolins, traffic. I hope I am not very fast. Is it okay? Okay. So क्या टॉपिक क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड. सो जो लॉस एंड डैमेज कुछ कंट्रीज को हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एग्जैजरेटिव क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, जितना टाइम लेके होना चाहिए था उतना टाइम लेके नहीं हो रहा, इसीलिए दिस थिंग इज हैपनिंग. नाउ व्हाट इज दिस फंड अबाउट? सी, सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सीओपी? एनीवन? सीओपी मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सीओपी होता है. यहां पे जिस सीओपी की आप बात कर रहे हो, दैट बिलोंग्स टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. आई विल गिव यू अ फेयर आइडिया ताकि आप भटको ना. 72 की मीटिंग याद है, स्टॉकहोम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कन्वेंशन में यूनाइटेड नेशंस ने बोला, गो फॉर अ 20-year डिस्कशन, go for a 20-year revaluation in your country and see what problems do you have. See, climate change की प्रॉब्लम जो मालदीव्स में होगी वो इंडिया में नहीं होगी, जो इंडिया की प्रॉब्लम होगी हो सकती है वो नेपाल की ना हो. So different countries according to their geographical setting will be having different problems in relation to climate change. They have to identify such problems and they have to make policies and acts to conserve and protect their environment. After 20 years, they will meet at a certain place to discuss about the policies, the acts, what they are doing. And if further action need to be taken collectively, it will be taken. ये United Nations ने बोला. So after 1972, ये लोग मिलते कहाँ हैं? 1992 में. 1992 में कहाँ मिले? Anyone? Rio de Janeiro. So this is in Brazil, Rio de Janeiro. और इस मीटिंग को बोलते हैं अर्थ समिट. I don't know what's happening.
अर्थ समिट 1992 में, ठीक है. द सेम पार्टीज, द सेम मेंबर्स मेट आफ्टर 1972. तो ये जो मीटिंग है ये यूएनईपी के अंडर हुई. 72 में यूएनईपी को बनाया और यूएनईपी की मीटिंग हुई 1992 में पहली बार, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट. कहाँ पे? रियो. तो रियो समिट भी बोलते हैं इसको बहुत बार, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. अब यहाँ पर डिसाइड क्या हुआ? 3-4 चीजें डिसाइड हुई कि सबसे पहले we will be talking या we will be working on greenhouse gases. Greenhouse gases have the potential to trap more energy, trap more heat, and that makes the environment warm. Global warming results to climate change. So we will cater to this. Next इन्होंने decide किया CBD, मतलब Convention on Biological Diversity. यही जो अभी हम बात कर रहे थे, इलीगल ट्रैफिकिंग, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज. सो स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, वी विल टॉक इन सीबीडी. नेक्स्ट दे टॉक्ड अबाउट डेजर्टिफिकेशन. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन है ना, यूएनसीसीडी है ना, यूएनसीसीडी, ठीक है. कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है. और लास्ट है एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 4 हेड्स इन्होंने खोल दिए 1992 में. और ग्रीन हाउस गैसेस को केटर करने के लिए कन्वेंशन का नाम बनाया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी. फ्लोरा एंड फौना के लिए सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डेजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एंड एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नया एक हेड खोल दिया, एजेंडा 21, मतलब 21st सेंचुरी में किस तरह हमें चलना है. ये 4 हेड्स खोल दिए. ये चारों के चारों प्रोग्राम्स यूएनईपी के अंडर हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इसका बहुत अच्छे से आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप सीओपी समझ पाओगे. सिर्फ सीओपी पढ़ लिया और आंसर नहीं कर पाओगे ऐसे एग्जाम में. बहुत टेक्निकल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एरिया से. ओके, सो एम आई क्लियर? तो दिमाग में एक माइंड मैप बना लो. यू शुड हैव अ माइंड मैप. सीधा इधर देखो, 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस ने बुलाया. यहाँ पर उन्होंने क्या किया, नई बॉडी फॉर्म की, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, इसको जिम्मेदारी दे दी, यू लुक आफ्टर द एनवायरमेंटल कंसर्न. इसने बोला 20 साल बाद मिलते हैं. 72 के बाद 92 में जब ये लोग मिले, कहाँ मिले? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो. कौन मिल रहा है? यूएनईपी मिल रही है. अब यूएनईपी मिल रही है. यूएनईपी ने 4 तरीके की बातें की. ग्रीन हाउस गैस का कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बचाएंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाएंगे ताकि इकोसिस्टम सेव हो, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है बहुत सारे लैंड का, उसको कंजर्व करना है, एंड लास्ट जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सस्टेनेबली यूज करना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 4 चीजों को केटर करने के लिए 4 अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए. ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डेजर्ट को बचाने के लिए, मतलब सॉइल को कंजर्व करने के लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एंड लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को केटर करने के लिए एजेंडा 21. सो दीज 4 आर द कन्वेंशन. क्लियर है? अब ये कन्वेंशंस अपने हिसाब से अपनी मीटिंग्स करते हैं, उन्हीं को आप बोलते हो सीओपी. यूएनएफसीसीसी को हर साल मिलना है. इनके चार्टर में लिखा है एवरी ईयर दे शुड हैव अ एनुअल मीटिंग. सीबीडी को 2 साल में एक बार मिलना है. यूएनसीसीडी अलग से मीटिंग नहीं करता. जब सीबीडी मिलता है या यूएनएफसीसीसी मिलते हैं, इनके साथ ही ये मीटिंग कर लेते हैं. और एजेंडा 21 10 साल में एक बार मिलना है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोज रोज नहीं चेक कर सकते ना. We have to cater to the different policies, different programs, see their growth, and then we need to come back. So 10 years में एक बार वो लोग मिलते हैं और अलग से मीटिंग नहीं करते, इन्हीं के साथ मिल लेते हैं. Because the member are same. वही इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया, ब्राजील, यही लोग मेंबर्स हैं. So they need not to meet differently. Okay. Now UNFCCC हर साल मिल रहा है और अभी तक 28 टाइम्स मिल चुका है. सो अभी दिसंबर में जो मीटिंग कंक्लूड हुई है COP 28, दैट वाज हेल्ड इन दुबई.
तो जो भी रिसेंट कन्वेंशन होता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो आउटकम होता है, दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर 2-3 चीजें ही बड़ी हुई हैं। देखो 2019 में इनकी एक मीटिंग हुई थी पोलैंड में, वॉर्सो। वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वहां पर फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक ऑफ लॉस एंड डैमेज, ओनली इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद जस्ट इसके पहले COP27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट, शर्म अल शेख आइलैंड पे, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला में है, जो एक बार जिसमें 6 डे वॉर हुआ था, इजराइल ने जो आइलैंड ले लिया था उसी में, शर्म अल शेख। वहां पर क्या डिसाइड किया इन्होंने कि एक फंड को लॉन्च करेंगे, बस इतना ही बात की, फंड को लॉन्च करेंगे। और 28 COP दुबई में इन्होंने फंड को लॉन्च कर दिया। कौन सा फंड है? लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। लिसन केयरफुली, हाँ, इफ यू वांट टू राइट रनिंग नोट्स इट्स ओके। अब व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? देखो मोस्ट ऑफ द फंड्स आर ऑलवेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, एंड द फंड कॉर्पस विल बी गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली यही होता है। बट दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंड जहां every country can contribute, whether it is developing, whether it is developed, or whether it is least developing, every country can contribute. And any developing country or small island nation or least developed country, कोई भी इससे फंड ले सकता है to compensate the loss and damage created by climate change. Clear? So that is why it is a special fund. और 2023 दिसंबर में, एक महीने पहले क्या हुआ? 18 countries have promised to pledge money in this fund, LND fund, loss and damage fund. और समझ लो लॉस एंड डैमेज जो इन्होंने कैलकुलेट किया है, that crosses $500 billion. I repeat, $500 billion. और जो कॉर्पस इनके पास प्रेजेंट है, that is only $700 million. ठीक है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ मनी टू केटर टू द प्रॉब्लम्स। ओके, अब आप सोचो, वही घूम फिर के वही बात आ जाती है, दे आर मीटिंग इन दुबई, दे आर मीटिंग इन स्टॉकहोम जस्ट टू क्रिएट द फंड। व्हाई कांट दे मीट वर्चुअली? कितने पैसे बच जाएंगे? 193 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स आर ट्रैवलिंग टू अ पर्टिकुलर सिटी, staying in 5-star and 7-star hotels, hiring cars, delegates are coming. It is a $1 million investment or expense. So that can be made a corpus in the funds, no? They are losing these funds. So I call them climate tourists. पहले भी बताया था, है ना? So they are wasting a lot of money in fuel, I don't know what. When there was COVID, they were doing the same meeting virtually. So they were saving a lot of money. So why don't they save this money and put it in the climate change basket? But they will not do. Okay. So this was about the LND fund. So it was talked of in Poland, Warsaw. It was decided in Sharm el Sheikh, Egypt, COP27, and it was launched in COP28, Dubai. ठीक है? आप मेरे को बताओ, पोलैंड में जस्ट LND को लॉन्च बात की थी कि ऐसा भी एक फंड होना चाहिए, लॉस एंड डेवलपमेंट के बारे में इशू उठाया था। तो बहुत लोगों ने इसको वो भी किया था, जैसे चाइना, कि यू कैन केटर एनीथिंग, आप कुछ भी लॉस दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, बट कभी कभी वेदर इवेंट्स भी होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ COP28, ओके, दुबई। नाउ टेल मी, सबसे बड़ा कारण क्या है क्लाइमेट चेंज का? व्हाट डू यू थिंक? एनीथिंग? क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, एटलीस्ट टेल मी 1 or 2 रीजंस। व्हाट डू यू थिंक व्हाई द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस इज एग्जैजरेटिंग? जल्दी क्यों हो रहा है? लाइक एग्जांपल, व्हाट हार्म आर वी डूइंग टू द एनवायरनमेंट? डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब कार्बन सिंक हटा रहे हैं, मोर कार्बन इन द एनवायरनमेंट, नंबर 1। एनीवन एल्स? ट्राई थिंक। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन से पोल्यूशन बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा।
लैंड डिग्रेडेशन कैसे कर रहे हो? यू यूटिलाइजिंग मोर लैंड, क्लियरिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यही ना लैंड डिग्रेडेशन. फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हमारे वाटर बॉडीज पोल्यूट होते हैं. बट हाउ इज द एयर पोल्यूटेड? एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्या यूज करते हैं हम इंडस्ट्रीज में? फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो उससे क्या निकलता है? व्हाट इज द आउटकम? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एवरी greenhouse gas is emitted when you burn the fossil fuel. Now I'll tell you one fact. COP28 Dubai में first time they accepted that fossil fuel is the main reason for the climate change. मतलब 28 मीटिंग इन्होंने कर लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर दिया, and now after 28 meetings they are telling that now we accept that fossil fuel is the main reason for climate change. So ये एक jargon था इस मीटिंग का, मतलब एक प्रॉपर स्टेटमेंट दिया गया, and that is why net zero emissions की बात की गई. तो net zero emission में इंडिया ने बोला मैं 80% of my energy consumption is dependent on coal. Till now we are standing in 2023, 24. Yeah, so till now 80% of our dependency is in the coal energy. So हम इतनी जल्दी कैसे phase out करेंगे? So India told कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 50% हम renewable energy ले आएं और 50% non renewable use होता रहे. And 2070 में we will be net zero emission. That's a very ambitious goal, very far to 2070. So 2070 के हिसाब से अगर चलेंगे तो अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के वजह से 2 डिग्री इंक्रीज हो गया. सो वी आर नाउ इन 17 डिग्री. बट अगर 2070 तक ये चलता रहा तो आराम से ये 20 डिग्री ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पहुंच जाएगा, विच इज टू मच. इट इज एवरेज टेम्परेचर, याद रखना. एंड 2070 में इंडिया का टारगेट है, एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट. ओके, चलो. सो इनफ अबाउट द L&D. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट. एनीथिंग एल्स? कुछ पूछना है? देखो आपके हैंडआउट में देयर इज वन बॉक्स गिवन जिसमें लिखा है क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. वो जो L&D वाला न्यूज है ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है. कुड यू फाइंड व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? रीड फ्रॉम देयर, एक बार पढ़ के देखो. व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं. ओके. And what is adaptation and mitigation? Yes, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा. एंड मिटिगेशन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, है ना, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट. सो दीज two are the important terms used in terms of conservation strategies and climate change, adaptation and mitigation. So एक fund भी बनाया है इन्होंने, adaptation and mitigation fund. So there are many funds like this under the UNEP, UNFCCC program. Okay. Now we move on to the production gap report 2023. ठीक है. Gap word है, so it means that they will be talking something about the gap. So, किस चीज के प्रोडक्शन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स मेनली. सो फॉसिल फ्यूल्स देखो, यही जो UNFCCC है हमारा, इसी के कन्वेंशन में डिसाइड हुआ था कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस. 1990 के पहले ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री. 15 डिग्री सेल्सियस इज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर. दिस वाज इंक्रीज्ड
by 1.5 to 2 degree. आप 2 degree मान लो, 17 degree Celsius. Now it was decided by UNFCCC members that उतना ही fossil fuel का production हम करेंगे और use करेंगे जो कि 2 डिग्री जो बढ़ गया है उसको मेंटेन कर सके और आगे ना बढ़े. समझ रहे हो? बट देयर इज अ गैप. आपने प्रॉमिस किया है फॉर एग्जांपल कि आप 100 टन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस प्रोड्यूस करोगे एंड बर्न करोगे, बट आप कर कितना रहे हो? 110. मतलब 110%, 110 भी नहीं, 110% मतलब 220. 220 हो गया ना. सो 110% जो है आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है. सो वो जो 2 डिग्री बढ़ गया है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो और आगे बढ़ जाएगा. So that is all about your production gap report. You can read from here. किसने दिया है ये रिपोर्ट? अगेन UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सपने देख रहे हो क्लास में? हाँ, नैरोबी, केनिया. इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसका हेडक्वार्टर बार बार, इसलिए बता रही हूँ. ओके, नेक्स्ट यहाँ से देखो आप, ऑब्जेक्टिव देखो इसका कि क्यों ये रिलीज हुआ. गवर्नमेंट्स प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन and global production levels consistent with limiting warming to 1.5 degree to 2 degree Celsius. ये कहाँ पर डिसाइड हुआ था? 2015 में डिसाइड हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में. ये भी एक COP था जो 2015 में हुआ था, 2015 पेरिस में हुआ था, इसीलिए इसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बोलते हैं. आगे इसको पढ़ के देखो, कोई डाउट हो तो पूछो. इंडिया का ना टारगेट आपके हैंडआउट में मेंशन नहीं है. यू कैन राइट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. लिख लो. इंडिया टारगेट्स 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी by 2030. By 2030. 500 gigawatts of renewable energy by 2030, which accounts to 50%, of energy consumption, which accounts to 50% of energy consumption. And net zero target of India, net zero carbon emission target, net zero carbon emission target is 2070. 2070. This is the target which India has given under the nationally determined contribution, जिसको आप NDC बोलते हो, under the UNFCCC, nationally determined contribution, NDC. मतलब UNFCCC के अंडर हर कंट्री ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो इंडिया ने अपना NDC ये लिख कर दिया है कि 50% हम आ जाएंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल 50-50, और 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे. बट द रिपोर्ट सेज दैट देयर इज अ गैप.
आप कह रहे थे कि आप एनर्जी कंजम्पशन कम करोगे, बट अभी भी 80% आपकी इकोनॉमी कोल पे डिपेंडेंट है, एंड आप थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हो आफ्टर चाइना एंड यूएसए. एंड चाइना एंड यूएसए तो बिल्कुल भी एनवायरमेंट के ऊपर काम नहीं करते हैं. दे डोंट बिलीव इन यूएनएफसीसीसी एंड यूएनईपी प्रोग्राम्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन, एंड इन द कमिंग 10 years द टेम्परेचर विल बी क्रॉसिंग 3 डिग्री सेल्सियस. मतलब 3 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो 45 डिग्री सेल्सियस में तो रहने की एडेप्टेबिलिटी बना ली है हम ह्यूमंस ने. नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर season, and even lesser in the winter season, because global warming is always accompanied by global cooling effect. ठीक है, so long winters and again short summers, but the temperatures will be extreme. So the areas which were getting flood will be getting more flood. The areas which were getting drought will be having more harsh droughts. So this is the effect of climate change. 3 degree तक पहुंचेगा. Okay. Any doubt in the production gap report? So who has given the production gap report? Exam में आएगा UNEP, United Nation Environment Program. UNEP ने क्या बोला है, कितने परसेंट से आप गैप है? 110%. 110% का गैप है. 3 largest emitters of greenhouse gases in the world, US, China and India. India is the third one. India का nationally determined contribution क्या है? By 2030, 500 gigawatt of renewable energy production, and by 2070 we are going net zero emission. Very good. Okay. Next news is about the doomsday clock. है ना, ये आप खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है. It's very easy. Doomsday clock, there's nothing to explain. So there is this clock which has been made by some American artist in 1947. तो जब भी कोई घटना होने वाली होती है, mainly of nuclear war or the climate change, so the clock is set. तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी इस क्लॉक को सेट किया गया था. एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में इस क्लॉक का जो टाइमिंग था सबसे कम था, 90 सेकेंड्स. मतलब वो अनुमान लगा रहे थे कि 90 सेकेंड्स बाद ही वॉर हो जाएगा, ऐसा. So this is about doomsday clock. It's not very important, but still you can read. Okay. Next we come to our 6th news, which is lithium deposits. है ना? So what is about lithium? What is the buzz about lithium? Anyone? क्या lithium नया product है या we know about it? What is about lithium? Anything? What is lithium? EV सेक्टर में यूज होगा, आपके मोबाइल्स में यूज होगा, पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज होगा, ठीक है, बैटरीज में यूज होगा, लिथियम आयन बैटरीज. सो सी इंडिया में वी हैव अ प्लेस डीगाना इन राजस्थान. वहां पर 1914 में, ठीक है, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने एक मटेरियल डिस्कवर किया था, टंगस्टन. सुना है नाम टंगस्टन? 1990 मतलब आज से 24 इयर्स पहले टंगस्टन की प्रोडक्शन इंडिया में बंद हो गई थी, क्लोज डाउन. टंगस्टन का यूज लिथियम जैसा ही हुआ करता था, ठीक है. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे दे यूज टू मेक वेपन्स आउट ऑफ दिस टंगस्टन. देन शीट्स, जो घर बनाने के लिए शीट्स होते हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स मटीरियल्स दे यूज टू यूज टंगस्टन. बट टंगस्टन का जहाँ पे टंगस्टन मिलता है वहां पे लिथियम भी मिलता है. और इंडिया में लिथियम आज से नहीं, 1914 में डिस्कवर हो गया था, बट वी वर नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ लिथियम. दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है. बट देयर आर सम फार साइटेड कंट्रीज हु न्यू द वैल्यू ऑफ लिथियम एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन. लिसन टू माय वर्ड. अकॉर्डिंग टू UNFCCC या UNEP, there are 4 stages of mineral exploration. First stage is to identify कि मिनरल है या नहीं. Second is basic exploration, एक्सप्लोर करके देखना कि सच में वो मिनरल है जो हमने जियोलॉजिकल स्टडीज से आइडेंटिफाई किया है. थर्ड वन इज प्राइमरी एक्सप्लोरेशन एंड फोर्थ वन इज एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन. इंडिया अभी सेकेंड स्टेज पे है, बेसिक एक्सप्लोरेशन के स्टेज में है इन लिथियम. बट कंट्रीज लाइक चाइना, Japan, South Korea and Hong Kong territory, autonomous Hong Kong territory, they are the producers of lithium and they have captured the world market, not the Asian market, the world market. And let me tell you,
they don't have much resource. The largest resource belongs to South America, Argentina, Bolivia, Chile, है ना? And then there are resources in Australia, there are resources in Eastern Europe, and there are resources in India also. But 40% of the market share of production of lithium belongs to China. Because उन्होंने स्टेज 3 पहले क्रैक कर लिया था. उनको मालूम था कि लिथियम इज अ वाइट गोल्ड, आने वाले दिनों में लिथियम आयन बैटरीज ही आप बनाओगे. टेस्ला कहां से ऑर्डर करती है लिथियम? चाइना से. ओके, यूएस अभी तक क्रैक नहीं कर पाया है कि लिथियम के एक्सप्लोरेशन में वो स्टेज 3 में कैसे पहुंचेगा. इसी दौरान क्या हो रहा है, इंडिया में लिथियम डिस्कवर हो रहे हैं. फर्स्ट इस साल में आपने देखा जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड राजस्थान डीगाना, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट्स में है, थर्ड वी गॉट इन झारखंड, फोर्थ वी गॉट इन कर्नाटका. ठीक है, सो दीज आर द प्लेसेस वेयर लिथियम डिपॉजिट्स आर फाउंड एंड दे से दैट if we can explore the lithium in India, then India अपना consumption पूरा करने के बाद it will export also. इतना ज़्यादा lithium होगा इंडिया में. But the main problem is exploration. So now we are dependent on imports from China, Japan, South Korea and especially Hong Kong. Hong Kong से भी हम ले रहे हैं. But in the coming days we can use our own homegrown lithium, which is explored mainly in Jammu Kashmir, Riyasi, Rajasthan, Digana, Karnataka and Jharkhand. ये 4 states में तो पक्का है कि मिल गया. Okay, so lithium is a rare earth mineral. It is called as white gold. It will be used in all portable devices, the batteries, the EV sector. So आने वाले दिनों में EV sector, India is aspiring to have 30% of the EV market share worldwide. ठीक है, मतलब 30% EV व्हीकल्स जो वर्ल्ड में बनेंगे उसका 30% विल बी मेड इन इंडिया एंड इसका 80% मार्केट शेयर इज विथ टाटा मोटर्स. 80% of that 30% market share belongs to Tata Motors at this date. So Tata is heavily working on EV sector. Yes, 4-wheeler. Yeah. So and they are also putting the charging stations. They have Tata Power for that. Then the AI which will be used, that Tata Elxsi is working for that. The steel which will be used, Tata Steel is for that. ठीक है, so they have in-house industry for all the EV sector and they will be also dependent on lithium. So it will be a boost for Indian economy if we are able to explore the lithium in India only. Otherwise again we will be depending on imports, just like we were dependent on imports for petroleum. And that is why Indian inflation was not controlled by the Indian consumer market, but it was controlled by the global import and export market. So same will be happening if lithium is not explored in India. We have the resources, so we should think about the exploration strategies. Riyasi districts, REASI, Riyasi districts. तो इंडिया में कौन सी कंपनी लिथियम एक्सप्लोरेशन का काम करेगी अभी तक? हाँ, गणित विदेश तो बस थोड़ा सा सपोर्ट देगी. इन जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है नाल्को वो करेगी. एंड रशिया में भी डिस्कवरी हो रही है, सो इट इज गोइंग बिग. और आप लिख लो प्रेजेंटली 2024 की बात आप लिख लो. यू दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. तो आप कोई भी आंसर लिखते हो ना मेंस में, एंड इफ यू गिव सम ब्राउनी एग्जांपल्स यू गेट ऑलवेज गुड पॉइंट्स. 94% ऑफ लिथियम प्रोडक्शन इज इन एशिया. आपके नोट्स में नहीं है, प्लीज राइट. 94% ऑफ लिथियम प्रोडक्शन इन 2024 is in Asia. And China accounts 40% alone. And China accounts 40% alone. Other countries are Japan, South Korea, Hong Kong. इन तीनों का नाम जरूर लिखो. Japan, South Korea, Hong Kong. Resource बहुत कम है, only around 6 million tons. इंडिया का अकेले रियासी में 5.9 million tons एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. ओके,
रिसोर्स बहुत कम है लेकिन एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी है। और एक स्टेटमेंट और लिख लो, यू विल यूज दिस, around 50% of world lithium resource, not production but the resource, around 50% of world lithium resource is in South America triangle, is in South America triangle। उस ट्रायंगल में 3 कंट्रीज है, तीनों के नाम लिखो, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। बहुत लोग चिली बोलते हैं, चिले बोलना चाहिए, CHILE, चिले, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। दिस वाज ऑल अबाउट लिथियम। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज इन रिगार्ड टू पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। देख रहे हो, आई थिंक न्यूज नंबर 7, करंट अफेयर 7। सो क्लास की जब शुरुआत हुई थी तो वी टॉक्ड अबाउट मरीन रिसोर्सेस, रिमेंबर? हैव यू कंप्लीटेड योर ज्योग्राफी? नो? ओशनोग्राफी पढ़ी है? सो ओशनोग्राफी में हैव यू read about marine resources, the last topic of oceanography? Anyone? So marine resources में there are 2 kinds of resources, एक तो abiotic resources और एक biotic resources। Biotic resources के बारे में I already told you 3 levels होते हैं, planktons, nectons and benthos, and abiotic मतलब minerals and energy। तो मिनरल्स आपको 2 जगह पे मिलेंगे ओशन में, ऑब्वियसली ऑन द कोस्टल बेल्ट, क्योंकि जमीन है, जितना बीच है, जितने दूर कोस्ट वो बीच जाएगा उतने दूर तक मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अनदर सी बेड, बिल्कुल नीचे एबाइजल प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, वहां पर आपको मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सी बेड पे, ठीक है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ना, नोड्यूल्स है मतलब समझ लो एक रॉक का गुच्छा है, इट इज अ पीस ऑफ रॉक, उसके अंदर ही जिंक, कोबाल्ट सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर आपने उस नोड्यूल को एक्सट्रैक्ट किया then you can extract another 5 minerals from it, so it's very important, polymetallic nodules। so ocean drilling project जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी देती है। so इंडिया ने बहुत पहले 1980s में एक लाइसेंस लिया था फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी दैट आई वांट टू एक्सप्लोर सम मिनरल्स। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ तो कोई भी आ सकता है, बट देयर इज वन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनक्लॉस। तो यूनक्लॉस डिसाइड करता है कि कितनी ओशन टेरिटरी किस कंट्री के पास है। सो आपकी जो कोस्ट लाइन है वहां से अराउंड 24 नॉटिकल माइल्स तक इज योर टेरिटरी, है ना। सो इन दैट टेरिटरी यू कैन एक्सप्लोर द मिनरल्स, एंड देन देयर इज इंटरनेशनल वाटर, जिसके लिए यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल सी बेड authority and you can explore the polymetallic nodules. So India has signed various agreements with the International Seabed Authority and other countries in contract and combination so that we can extract these metals and minerals. Again, they will be helping in the upcoming solar energy, upcoming EV sector. कैसे? solar panels बनाने के लिए ये metals की जरूरत है, and EV के लिए हमने already lithium के साथ साथ discuss किया। So this was about the polymetallic nodules. अब आप देखो यहाँ पर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के बारे में लिखा है, एंड इंडिया वाज अ पायनियर इन्वेस्टर। मैंने पहले ही आपको बताया कि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसके अलावा कारा सी है एक रशिया में, विच इज नॉर्थ ऑफ रशिया, बिल्कुल आर्कटिक ओशन के साथ साथ, वहां पर भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की भरमार है। ओके, सो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर ही आपको मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब कुछ मिल जाता है, इवन आयरन। सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। सो एक रिकैप करते हैं क्या क्या किया अभी तक। फर्स्ट वाले न्यूज में जाओ, क्या था, कम बताओ ना। पैंगोलिन्स के बारे में था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने WPA सीखा था, साइट्स एंड ट्रैफिक और 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखा,
and you were knowing some facts about pangolins. Status क्या दिया IUCN ने pangolins को? Critically endangered. Okay, next news. एलियन इन्वेजिव एलियन प्लांट्स, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है. उन्होंने बोला है बहुत सारे एलियन स्पीशीज है इंडिया में. तो हमने डिस्कस किया कि एलियन स्पीशीज किस तरह एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं. थर्ड, लॉस एंड डैमेज, बट दिस वी डिस्कस्ड इन डिटेल बिकॉज ये रिलेटेड टू UNFCC था एंड COP28 विच वॉज हेल्ड इन दुबई. 3 COPs इससे रिलेटेड है, वॉर्सो पोलैंड, शर्म एल शेख इजिप्ट एंड दुबई. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्शन गैप रिकॉर्ड. अगेन वी डिस्कस्ड अबाउट द fossil fuel production in different countries and the gap which was decided to maintain the temperature of 1.5 to 2 degrees Celsius. But जो gap है वो 110% का है. That is why they are expecting that the temperatures will be rising about 3 degrees Celsius. मतलब 1.5 से वो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा. इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 50% ऑफ द कैपेसिटी, 2030 तक एंड 2070 तक नेट जीरो एमिशंस. नेक्स्ट, डूम्सडे क्लॉक. नेक्स्ट, लिथियम डिपॉजिट्स. वी डिस्कस्ड इन डिटेल. इंडिया में कितने हैं, कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कहाँ रिसोर्स ज्यादा है, व्हाट इज द मार्केट टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियन मार्केट. वी डिस्कस्ड ऑल. नेक्स्ट, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स. सो लिथियम के साथ साथ इसको डिस्कशन में ले लोगे. द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर, फर्स्ट आपको मरीन रिसोर्स का एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है. सी बेड के पास आपको ये रेड क्ले एंड पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं. दीज आर द बेंथोस मटेरियल्स एंड देन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इसका लाइसेंस दे सकती है विच वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, UN क्लॉज. यहाँ तक हमने किया. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाइट हाइड्रोजन. ओके, आपको मालूम है हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस. तो बेसिक है बहुत, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, लेकिन सारे कलर्स के हाइड्रोजन अवेलेबल है मार्केट में. ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड नाउ दिस व्हाइट हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का कलर नहीं बदल रहा है. ठीक है. इट इज जस्ट द नेम गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वी डू. Can anybody tell me what is green hydrogen? Anyone? Huh? I could not. So electrolysis process से we will break down the H2O and take out the hydrogen. But ये जो electrolysis process में चलाने के लिए आपने जो मशीन यूज की है, इस मशीन में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो फिर वो ग्रीन कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी अगर लगेगी तो फॉसिल फ्यूल बर्न होगा. बट दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी दैट विल बी रिन्यूएबल एनर्जी. एंड रिन्यूएबल एनर्जी से जब आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे विद द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन. देन व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? यस, हाइड्रोजन बनाते वक्त जो फॉसिल फ्यूल निकलेंगे, कार्बन एमिशन होगा, उसको आप ट्रैप करके कंजर्व कर दोगे. यू विल नॉट एमिट इट इन द एनवायरनमेंट. देन इट इज blue hydrogen, mainly in the oceans हम उनको करेंगे. Then we have gray hydrogen made by fossil fuels, and now this is white hydrogen. So white hydrogen is not made, it is found naturally. So कहाँ पे मिला है? देखो आपके इसमें लिखा हुआ है. So recently a huge discovery of white hydrogen in France sparked excitement that it could become a clean, cheap and renewable energy source. अपार्ट फ्रॉम फ्रांस ये कहाँ मिला है? राइट, क्योंकि आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है. सो US, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज So these countries have discovered the white hydrogen. Okay, so obviously we all know that we are trying to substitute the material. We are trying to have the hydrogen instead of carbon dioxide and other fossil fuels, so that the energy sector drives and the renewable energy is made. See, water will never be replenished, and that is why the hydrogen will also be never be replenished. But
the cost of making green hydrogen or exploration of white hydrogen is too much. And if white hydrogen makes an international market in these countries, then again India has to import. So that is why, because of the discovery of white hydrogen, India has a challenge to make the green hydrogen project successful in India, so that again India should not become import dependent. Okay, so this was about this news. So earth ke crust mein hi you are receiving this white hydrogen, and uske baad in this particular they have given the definition of green hydrogen, blue hydrogen and gray and brown hydrogen also. So yahan se many questions can be cracked. Ek reading laga lo fatafat. Take 2 minutes, read about green, blue, gray and brown. क्या लिखा है? पढ़ के बताओ ना, रीड इट. हाइड्रोजन इज अ गैस. ठीक है, तो गैसिफिकेशन प्रोसेस से इसको निकालेंगे. ब्राउन कलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यू आर यूजिंग कोल, दैट इज. जैसे वेपराइजेशन होता है, गैसिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, दीज आर ऑल प्रोसेसेस. ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. सो वैसे ही गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां से आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द लोकेशंस पार्ट. तो लोकेशन में दिस इज यायासो. व्हाट डू यू मीन बाय सो? TSO लेक. सो यायासो is present in Ladakh. क्यों न्यूज में है? देखो, इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ पासिंग लेजिस्लेशंस इन द एनवायरमेंटल सेक्टर. तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. उसी तरह देयर इज वन मोर एक्ट विच इंडिया पास्ड इन 2002 बाय द नेम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इंडिया डेजिग्नेट्स बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी रीजन्स. इंडिया में अभी 44 हैं, एंड दिस इज द लेटेस्ट वन विच दे हैव आइडेंटिफाइड इन द यायासो. सो याया इज अ लेक विच इज प्रेजेंट इन लद्दाख. एंड सो मोरिरी, देर इज अनदर लेक सो मोरिरी. तो उसके रास्ते में आपको ये मोनेस्ट्री जाओगे तो उसके रास्ते में ये लेक आता है, याया लेक. सो मोरिरी पे एक टाउन है, इफ यू रिमेंबर, चुशुल, CHUSUL, चुशुल. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था इन द गलवान वैली, चुशुल में द सीज फायर वाज साइंड, एंड दैट इज व्हाई सो मोरिरी लेक वाज आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो. ओके, बिकॉज चुशुल इज सिचुएटेड इन सो मोरिरी लेक रीजन. सेम इज विद दिस याया लेक. ओके, सो एक बार एक UPSC में 2-3 बार लद्दाख के मॉनेस्ट्रीज पे क्वेश्चन आ चुका है. तो जो भी मॉनेस्ट्रीज इन लेक्स के आसपास होती है या कोई बायोडाइवर्सिटी रीजन आइडेंटिफाई होता है तो उन पे 2 बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. सो यहाँ भी एक मॉनेस्ट्री है, देखो आपके नोट्स में नाम लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइड माहे मॉनेस्ट्री. ठीक है, सो माहे मॉनेस्ट्री और सो मोरिरी लेक के बीच में देयर इज अनदर लेक विच इज नोन एज यायासो. ओके, सो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है. उसके अंदर लद्दाख को फर्स्ट BHS मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट
अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 डिक्लेयर किया है. देयर आर अराउंड 44 BHS इन इंडिया इन 16 स्टेट्स एंड ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ही इनको डेजिग्नेशन मिलती है, 2002 का जो एक्ट. ओके, इकोलॉजिकली सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है. एक और डिफरेंट स्पीशीज वहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एंड दैट इज व्हाई दीज एरियाज आर आइडेंटिफाइड एंड ट्राइड टू कंजर्व. इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना है, सिक्योर हिमालय. देखो नेक्स्ट पेज में, आई डोंट नो द पेज ऑफ योर्स, बट सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इज देयर. देखो किसने प्रोजेक्ट किया है? ऑब्वियसली इंडिया में तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करेगी, बट आप देखो यहाँ एक डिफरेंस है, UNEP नहीं है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसको अंडरलाइन कर दो बिकॉज ये कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में आंसर करते वक्त. सो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में दे आर नॉट टेकिंग द UNEP बट डायरेक्टली UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें इन्वॉल्व हुई है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका जो फंड है वो कौन दे रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF. नाउ व्हाट इज GEF? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट फंड है जिसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए. हमने बात किया रियो समिट, अर्थ समिट 1992 में. 1992 में ये फंड को UNEP ने लॉन्च किया था और इसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF. पहले ये फंड वर्ल्ड बैंक के अंदर था. इनिशियली दिस वाज अ कॉर्पस मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, बट नाउ दिस फंड हैज बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब ये वर्ल्ड बैंक के अंदर में नहीं है. नाउ दिस फंड हैज बिकम इंडिपेंडेंट. एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी एक लिस्ट है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फंडिंग को देखता है. सो GEF किस किस चीज को देखता है? एक लिस्ट लिख लो. UNFCCC, this is the first one. Second one, CBD, Convention on Biological Diversity, CBD. Third one is UNCCD, desertification, ठीक है, to combat climate change, to combat desertification, sorry. अब आ रहा है नया persistent organic pollutants, POP, स्टॉकहोम कन्वेंशन. ठीक है, ये वो वाली स्टॉकहोम नहीं है, 1972 वाली नहीं है. ये POPs को कम करने के लिए, इनको फेज आउट करने के लिए एक अलग से कन्वेंशन है. सो स्टॉकहोम कन्वेंशन ब्रैकेट में लिख देना, POPs, persistent organic pollutants. And last, there is one more convention which is stopping the mercury to go into the ocean, Minamata. This is a place named in Japan, Minamata. So Minamata Convention on Mercury, Minamata Convention on Mercury. तो ये पूरी लिस्ट है जिसको GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है फंड कर रहा है. एंड दिस वाज अ कॉर्पस अनाउंस्ड बाय UNEP in 1992 ओनली. इट इज स्टिल रेलिवेंट. आप देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय, उसको भी यही फंड कर रहा है अंडर द UNDP एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, सो दिस वाज अबाउट GEF. याद रखना है, एग्जाम में GEF के बारे में पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से. So what I want to tell you is UPSC will never repeat the questions. You know that, isn't it? But UPSC always repeats the topics. उसके एक सेट ऑफ टॉपिक्स है, 40% क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में होते हो. आप देखो अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस आप उठाओगे, CAG से क्वेश्चन आता है बार बार, अलग अलग क्वेश्चन आएगा लेकिन टॉपिक सेम है. स्पीकर से आएगा क्वेश्चन पार्लियामेंट चैप्टर में, प्रेसिडेंट से बार बार वो पूछते हैं. एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, जितने इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, UNEP, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन, आप अगर एनालिसिस करोगे PYQs को, सो दे रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक. सो अलग अलग तरीके से दे कैन आस्क, दैट इज व्हाई GEF. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मणिपुर's लोकटक लेक. What is important about Manipur's Loktak Lake? Is Manipur's Loktak Lake is a Himalayan lake? Yes. So Manipur mein we have Manipuri hills, which are the part of eastern Himalayas, or you can call it Purvanchal, है ना? So they are, this lake is near to Imphal, the capital, in the
मणिपुरी हिल्स, लोकटक लेक। लेक बहुत इंपॉर्टेंट है लोकटक लेक। सबसे पहली बात इसके बारे में, दिस इज द रामसार साइट। ओके, व्हाट इज द रामसार साइट? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है टू डू व्हाट? नो, they are not preserving the wetlands. To promote fair and sustainable use of the wetlands. ठीक है, रामसार कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट फेयर एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ओके, तो वो वेटलैंड्स को यूज करवाना चाहते हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन should not be done so that coming generations can also have the benefit of the wetland. Now, simple question, what is a wetland? हाँ, सरफेस जो वाटर से रिचार्ज हो गई है। एग्जाम्पल, even a paddy field, lakes, dams, reservoirs, man-made lakes, artificial lakes, saline lakes, freshwater lakes, backwaters, lagoons, anything which is wet, occupied some part of land is called wetlands. ठीक है, so Ramsar wetland sites इंडिया में कितने हैं? 75 था, अभी कल 4 और नए डिक्लेयर हो गए। ठीक है, सो लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। लास्ट 1 ईयर में इन्होंने 11-12 साइट्स नए बना दिए हैं एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आई विल गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। सो रामसार वेटलैंड साइट्स, एंड इंडिया में इतने ज़्यादा रामसार वेटलैंड साइट्स बन गए हैं कि नाउ इंडिया नीड्स अ नेशनल प्रोग्राम टू केटर द साइट्स एंड दैट इज व्हाई दे लॉन्च्ड आल्सो। वो इसके बाद वाला एक न्यूज़ आएगा, वो मैं बताऊंगी आपको। सो कमिंग बैक टू दिस लोकटक लेक, इट इज अ रामसार साइट। अदर देन दैट, लोकटक लेक इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। नेशनल पार्क का नाम है केउबुल लमजो, and there are 2 important species here. One, the plant species which is known as Phumid, PHUMID, फंडिस ग्रास। वो ग्रास बहुत सख्त है, ठीक है, इतनी सख्त है कि उसके ऊपर लोग रहते हैं, घर भी बना लेते हैं, बैम्बू हट्स भी बना लेते हैं। मतलब द ग्रास इज ऑन द रिवर, ऑन द लेक, द रूट्स आर फ्लोटिंग, penetrating, and they do not have any base, they are just floating grasses, but they are so tough and colonized that you can stay on them. And many of the tribes, the Metis tribes, they stay on this humid grass. The another important species is Shanghai deer, जिसका ऑफिशियल नाम है ब्राउ एंटलर्ड डियर। वी कॉल इट अ डांसिंग डियर ऑल्सो। इट्स ब्यूटीफुल, देखने में भी है और खाने में भी है टेस्टी, इसीलिए एंडेंजर्ड स्टेटस हो गया है बिकॉज हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा इन एनिमल्स की हो रही है। ब्राउ एंटलर्ड डियर, सो लुक वाइज भी बहुत सुंदर दिखते हैं ये वाले हिरन, एंड खाने में भी बहुत टेस्टी है। सो पीपल हु हैव ईटन they tell ki this is one of the most tastiest things we have ever had. So it is also celebration delicacy, brow antlered deer. So what about the Loktak lake is 94 years के बाद एक डक स्पीशी यहाँ देखी गई है लोकटक लेक में। इसका मतलब है the water of the Loktak lake is still feasible for those species which used to live 90 years back. मतलब water is not that much polluted. So इन species को बोला जाता है indicator species. The species who come back to your home again and show their presence, they actually are the indicator species. They are giving you an indication कि I think आपका घर अब रहने लायक हो गया है। Okay, so these duck species are the only species जो पूरा circumpolar घूम सकते हैं। आपने डक्स को देखा है उल्टा ऐसे स्विम कर लेते हैं, तो ये पूरा सर्कमपोलर स्विम कर लेते हैं। दे आर द ओनली डक स्पीशीज इन द वर्ल्ड, सारडैंग्स इनको बोलते हैं। बट कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट ने मणिपुर में ये क्लेम किया है कि लोकटक लेक में दे हैव बीन सीन अबाउट 94 इयर्स बाद में, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये डक्स की कोई एंट्री नहीं है। 94 इयर्स बैक कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिन्होंने हंट किया था इस डक को, और जब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स कोई ऐसे नए स्पीशी को हंट करते थे
तो वो रिकॉर्ड करते थे, उन रिकॉर्ड्स में इनका नाम है. दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग टू नो दैट लोकटक is back with these ducks after 94 years to be precise. Okay, so other important भी हो जाते, other animals भी important हो जाते हैं जो यहाँ पर है, brow antlered deer and pumids grass. And लोकटक के बारे में और भी चीजें, जैसे it is the largest freshwater lake in northeast India. It is a Ramsar site. It has the only floating national park in the world by the name of Keubul Lamjung. Okay. सो इस डांसिंग डियर का मतलब दिस ब्यूटीफुल डियर का IUCN स्टेटस क्या है, अंडरलाइन कर लो, एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है. ओके, सो रामसार कन्वेंशन में देयर इज वन टॉपिक विच इज नोन एज मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड. क्यों, क्या है ये मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड? देखो, एनी वेटलैंड विच इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ चेंज और कैन गो थ्रू अ चेंज, उसको मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं, सो दैट एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज उनको बता सके. सो इंडिया में 3 को अभी तक मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाला गया है. द फर्स्ट वन इज चिलिका. चिलिका इज द लार्जेस्ट लेगून इन एशिया. ठीक है, लार्जेस्ट लेगून इन एशिया, फेमस फॉर इरावदी डॉल्फिन्स कमिंग फ्रॉम म्यांमार एंड सेटलिंग इनटू द लेक. ठीक है, प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, गंजम डिस्ट्रिक्ट्स, which are also famous for olive ridley turtles. So biodiversity rich है पूरा का पूरा ओडिशा कोस्ट. सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. 3 species you need to remember, even 4, Royal Bengal tigers, salt water crocodiles, Irrawaddy dolphins and olive ridley turtles. Okay, next जो है हमारा, जिसको मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, that was Keladeo National Park, which is in consequence with the Bharatpur Bird Sanctuary. River is Gambhir. ठीक है, river is Gambhir. So and the third one is this one. Which one? लोकटक. ठीक है, so चिलिका को हटा दिया because 2010 तक चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया था, and Irrawaddy dolphins came back. They gave a indication that we are back. That is why you can have the assurance the water is not that much polluted. So Montreux record से उनको हटा दिया. Now only 2 remain, the Keladeo Bharatpur Bird Sanctuary, the Keladeo National Park, and this one, the Loktak Lake. So because of the new species, they came in the news and become important. हाँ, साइबेरियन क्रेन्स तो आएंगे ही. किसी भी वेटलैंड में माइग्रेटरी स्पीशीज तो कॉमन होते ही हैं. केलादियो नेशनल पार्क में साइबेरियन केन्स के अलावा और भी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं जिनका आना बंद हो गया. उनकी जो इकोलॉजी है वो थोड़ी चेंज हो गई है बिकॉज टू मच ऑफ टूरिज्म है वहाँ. भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी एंड केलादियो इज ऑल्सो अ पिलग्रिमेज. केलादियो, केला देवी इज द एक्चुअल नेम ऑफ दैट, बट केलादियो इज द इंग्लिश टर्म फॉर दैट. सो आप वहीं से हैं? हाँ, सो यू मस्ट बी बेटर नोइंग. बट आते हैं, बट और भी आया करते थे. वो चेंजिंग वापस नहीं आएगी तब तक उनका नाम मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में रहेगा. वैसे तो चिलिका लेक में अगर आप 95 से 2002 के बीच में विजिट करते तो हर बोट राइड में 3 डॉल्फिन्स आपको दिखेंगे. इतने डॉल्फिन्स हुआ करते थे इरावदी में. अब जो वापस आए हैं 2010 के बाद, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम के बाद, वो बहुत कम आए हैं, बट स्टिल दे हैव कम बैक. इसलिए मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड से हटाया है. बट द क्वांटिटी, द पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच जो 95 से 2002 के बीच में देखी गई थी. ठीक है, बिकॉज ओडिशा में दैट इज द मेन टूरिज्म पॉइंट. वो गंजम कोस्ट, दैट चांदीपुर, अब्दुल कलाम आइलैंड और ये चिलिका लेक, इसके अलावा ओडिशा में और कुछ नहीं है. फिर आप थोड़ा सा पुरी और भुवनेश्वर देख लो. दैट्स इट, डन. चलो, ओके. नेक्स्ट, मुनरो आइलैंड, केरला श्रिंकिंग आइलैंड. ओके, सो मुनरो आइलैंड बहुत ही फेमस आइलैंड है. क्यों? क्योंकि बैक वाटर्स जो है केरला के वो सबसे ब्यूटीफुल यहीं पर है. और ज्यादातर लोग तो बैक वाटर्स देखने के लिए एलपी जाते हैं, है ना, अलाफुजा डिस्ट्रिक्ट्स. लेकिन मुनरो आइलैंड इज मोर ब्यूटीफुल. इट हैज द लेक अष्टमुदी एंड इट इज वन ऑफ द लेगून्स इन इंडिया. सो केरला में 3 लेगून्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज सष्टम कोटा. इट इज वन ऑफ द लेक, बैक वाटर लेक, जिसको लेगून भी बोल सकते हो आप, सष्टम कोटा. सेकेंड इज अष्टमुदी
सो अष्टमुदी पे ही आपका ये मुनरो आइलैंड है. एंड थर्ड इज वेम्बनाड. सो वेम्बनाड इज अ biggest lake in Kerala. It is one of the famous lakes in all over India for the boat race. वल्लम कमी बोलते हैं ना, बोट रेस जो आप हमेशा मूवीज में देखते होंगे, दैट स्नेक टाइप बोट रेस, जिनको जो जीतते हैं तो उनको मिलता है नेहरू ट्रॉफी. सो नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू दिस बोट रेस इन वेम्बनाड. बट दिस पर्टिकुलर लेक अष्टमुदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी उनका अलग से एक बोट रेस होता है. सो एक्सट्रीम आंसर अगर आए कि ओनली वेम्बनाड इज हैविंग दैट, नहीं, अष्टमुदी एंड सष्टम कोटा आर आल्सो हैविंग देयर सेपरेट थिंग्स. Munro Island actually is dying down because of over exploitation of tourism and resources. Resources, seafood, fishes बहुत ज़्यादा है, उनका over exploitation हो रहा है, and tourism ने island को बिल्कुल ही pollute कर दिया है. मतलब I can't tell you how much the island is polluted, but still it looks beautiful. Because if you go to this particular Munro, मतलब it is exemplary. That is why Kerala must be having that tag, God's own state. After so much of exploitation, when it is coming in the news and different reports are also being published, it is still visitable. अभी भी visit किया जा सकता है. So that is the problem. Are you from Kerala? Where are you from? बिहार. Okay. नहीं, आप इतना सर हिला रहे थे तो मुझे लगा कि आपके. अच्छा, that is why you know about the area. Okay. Okay, so what is the largest lagoon in India? Chilika. What is the largest lagoon in Kerala? Vembanad. And Vembanad की एक और important चीज है. See, बहुत सारे questions बनते हैं Vembanad से. So this is how Vembanad Lake is. ये पानी इस तरह enter हो रहा है Arabian Sea का. And there is one hill of the Western Ghats. I don't know आपने कितना पढ़ा है अभी तक geography. So this hills are known as cardamom hills. ठीक है, cardamom मतलब इलायची. So पहली बार पूरे वर्ल्ड में जो cardamom उगाई गई थी, that was this place. That is why the hills are named as cardamom. Cardamom hills में you have a lake यहाँ पर, and this lake is known as Periyar Lake. This is the important lake in Kerala because इसके आसपास जो forest है that is known as Periyar Tiger Reserve, है ना. And Periyar Tiger Reserve, Periyar Lake से एक river निकलती है और इस तरह ऊपर चलती है, वेम्बनाड पे खत्म होती है इन कोच्चिन. ये सिटी जो है यहाँ पर कोच्चिन है, कोच्चिन या एर्नाकुलम बोल सकते हो. तो पेरियार रिवर एंड्स इन वेम्बनाड लेक, एंड दैट इज व्हाई वेम्बनाड लेक इज रिसीविंग फ्रेश वाटर, और इसीलिए इसको लेगून बोलते हैं. अगर सिर्फ ये बैक वाटर होता तो ब्रैकिश होता, सलाइन होता, बट इट इज रिसीविंग फ्रेश वाटर डेली फ्रॉम दिस रिवर पेरियार. रिवर का नाम भी पेरियार है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला. Okay, so Periyar Lake, Periyar Tiger Reserve, Periyar River, which is the longest river in Kerala. Longest river of Kerala is draining into the longest lake of Kerala, which is Vembanad. बहुत सारे questions बन सकते हैं, इसीलिए just guided you. And Vembanad Lake is also the Ramsar site. तो लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज सुंदरबन. सुंदरबन के बाद दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट. केरला का लार्जेस्ट है, इंडिया में दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट. मुनरो आइलैंड याद रखना है. और बहुत पुराना चर्च 1878 में, नॉट इंग्लिश नॉट फ्रेंच बट डच केम इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. वी नो दैट, राइट? एवरी वन ऑफ अस. Portuguese came for the first time in a official manner. Vasco da Gama came, but before that also we had some presence of Dutch. So the colony which was set up first was Portuguese. The next colony was Dutch, but Dutch people arrived before. Okay, so पहले उन्होंने colony नहीं बनाई. They opened printing press और missionaries. So that was in Bengal, Shrirampur, Hooghly district, जहाँ पे आपकी हुगली भागीरथी नदी बहती है.
The whole jute industry has been set there, वहाँ पर. But then the colony was established by Portuguese. Okay, and then obviously French and English. So we have Munro Island में we have one of the oldest Dutch church, not British or French or Portuguese, but Dutch church, which was made in 1870s, I think. I don't remember the exact year, 1872 or 78. चेक कर लेना, या तो नोट्स में भी होगा. ओके. Now moving on to the next location, Shinkula Tunnel. Shinkula Tunnel. तो आपको what do you know about Indian Army? Indian Army कहाँ तक बैठी है? सियाचिन तक. तो सियाचिन में जो इंडियन आर्मी बैठी है, उसको सप्लाईज भी तो चाहिए. जो लोग बैठे हैं उनके सप्लाईज के लिए द लद्दाख टेरिटरी is very important, which has been incorporated through different routes from the mainland India. And this Shinkula Pass is the third in this row. So this is the third one जो आपको लद्दाख टेरिटरी से mainland टेरिटरी को जोड़ रहा है. लिखो the first one कौन सा है? कारगिल ले हाईवे. लिख लो ना, कारगिल ले हाईवे. श्रीनगर कारगिल ले हाईवे. This is the first one. Second is Manali Sarchu Leh. Manali Sarchu, SARCHU Leh, LEH. Second one है ना. And the third one आप अभी पढ़ रहे हो, दारचा शिनकुला नीमू. दारचा शिनकुला नीमू. So नीमू तक ये रोड जा रही है. So now we have 3 highways which are connecting the Ladakh state, the Ladakh UT through the mainland India, mainly for the supplies of Indian Army, which should reach to the Galwan Valley and also to the Siachen Glacier. Okay, so Galwan का जो रोड है वो भी हमने इसीलिए बनाया था ताकि बाल्टोरो तक हम जा सके and Siachen तक जा सके. But the road has already been built. It is a all weather road. Snowfall हो, rainfall हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. The supplies are reaching good, and this is the third one in the row. Okay. So एक मैप दिया है क्या आपके हैंडआउट में? They have given a map. So वहाँ पे जहाँ दारचा लिखा है ना, दारचा से वो ऊपर जा रहा है, देखो शिनकुला दिख रहा है. तो शिनकुला इज अ पास. जैसे रोहतांग एक पास है, तो रोहतांग पास पे दे हैव कंस्ट्रक्टेड द अटल टनल. अटल टनल के बाद वही रोड आगे चली जाएगी बारालच्चाला एंड इट विल एंटर इनटू ले. ये थोड़ी सी साइड में है. इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड. दिस विल क्रॉस शिनकुला, देन एंटर पद्मून एंड देन नीमू एंड देन ले. तो अब जो ले सिटी है वो वेस्ट से भी कनेक्टेड है और ईस्ट से भी. अगर ईस्ट से कनेक्टेड जाना है तो मनाली, रोहतांग पास मतलब अटल टनल, बारालच्चाला, खारडुंगला, ले. और अगर वेस्ट की तरफ से जाना है तो देन यू हैव दिस रूट जिसमें शिनकुला, पद्मून, नीमू एंड ले. और अगर बिल्कुल श्रीनगर के साइड से जाना है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ले, कारगिल, श्रीनगर, इस तरह. सो अगर आप मैप को देखोगे, मतलब इफ यू सी ऑन योर एटलस, सो इफ दिस इज द ले सिटी, देन यू हैव 3 रूट्स नाउ. One is the Atal Tunnel route, second is the Shinkula route, and the third is the Srinagar Kargil highway route. 3 points now. Okay, याद रखना है. बहुत सारे different location point of view से questions बन सकते हैं. Other tunnels जो यहाँ पर important है, जैसे जोजिला tunnel, ठीक है, it's an old one, but you can read about it because it is Asia's longest bi-directional, and then Atal Tunnel. तो अटल टनल मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ रहा है मेनली, एंड देन बारालच्चाला एंड खारडुंगला. ओके, सो दिस वाज द लोकेशन पॉइंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट करंट अफेयर? गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सबसे पहले साई में इनिशिएटिव. तो साई में देखो, there are many initiatives which are being taken by the government of India to fulfill some of the eco-sensitive regions, which include mangroves
number 1, which include Ramsar sites. ठीक है, this Saime is actually related to 2 things. West Bengal में ना we have the largest mangroves, जो एक जगह पे present है, largest mangroves of the world है, not India. 5% of the पूरा world is present in West Bengal only. ठीक है, 40% ही सिर्फ इंडिया के पास है इस मैंग्रोव्स का, another 60% belongs to Bangladesh because the Sundarban Delta 60% has the area is in Bangladesh. Important क्या है इस particular scheme में, they have collaborated it with shrimp cultivation. ठीक है, तो shrimp cultivation में ना पानी बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है अगर आप अलग से करो, लेकिन मैंग्रोव्स कंजर्वेशन के साथ आपने अगर shrimp cultivation किया तो मैंग्रोव्स का जो रूट्स है वो बहुत सारे पोल्यूशन को सॉइल के अंदर जाने से रोक लेती है. कैसे? हैव यू सीन एनी मैंग्रोव प्लांट? मालूम ही होगा ना आपको, फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं. इफ दिस इज योर सॉइल ब्रिम, आपकी ये मैंग्रोव ट्री है, ओके, बट द रूट्स आर लाइक दिस, रूट्स ऊपर की तरफ है. ठीक है, सो ये जो रूट्स ऊपर की तरफ है ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट में, आप आसानी से नहीं चल सकते. एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली सेव्स सॉइल डिग्रेडेशन होने से, सॉइल कंजर्व करती है. बहुत सारे रिवर्स लेकर जा रहे हैं, सिल्टेशन हो रही है, उनको आगे जाने नहीं देती, प्लस सुनामी अगर है तो उनके स्पीड को भी ये कम कर देती है. ओके, दैट इज व्हाई मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंग्रोव्स कब फोकस में आया? 2004 में. 2004 में जब इंडियन ओशन सुनामी था तो पीचावरम मैंग्रोव्स इन चेन्नई रीजन एंड ऑल्सो मैंग्रोव्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखा गया स्टडीज से कि और भी इफेक्ट हो सकता था लैंड पे इफ मैंग्रोव्स नहीं रहते तो. सो दैट इज व्हाई मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के पैसे से एक इनिशिएटिव शुरू की गई, MFF, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर को देख रहे हैं. इनिशियली मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर में कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार यही थे. अब बहुत सारे कंट्रीज है जैसे कि वियतनाम, सिंगापुर, सेशेल्स, श्रीलंका, ये भी है मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर में. आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल इनिशिएटिव टेकन टू सेव द मैंग्रोव्स ऑफ एशिया, मेनली साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. ओके, नाउ दिस इज अनदर प्रोजेक्ट विच इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइमे, एंड श्रिम्प कल्टिवेशन को मैंग्रोव इकोसिस्टम के साथ दे आर coordinating because mangroves are capable to obstruct the pollution to go into the sea or the ocean. So इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. साइमे के बारे में, श्रिम्प आप जान गए हो, बाकी आपको मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा इंडिया का पता होना चाहिए. 40% is present in the Sundarbans and then another mangroves और कहाँ मिलते हैं? गोवा, we have गोवा, गुजरात में मिलेंगे. महाराष्ट्र में मलवन रीजन यू गेट मैंग्रोव्स. देन यू हैव केरला में यू गेट मैंग्रोव्स. कोल्लम में बहुत सारे मैंग्रोव्स दिखते हैं. ओडिशा में, आंध्रा में, एंड देन चेन्नई, चिदम्बरम, चेन्नई एंड पुदुचेरी कोस्ट. लक्षद्वीप में देयर आर नो मैंग्रोव्स माय डियर, देयर आर ओनली कोरल रीफ्स. ओके, लक्षद्वीप में मैंग्रोव्स नहीं है. अंडमान एंड निकोबार दोनों सेट ऑफ आइलैंड्स में यू गेट मैंग्रोव्स. एंड ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल कोस्ट में तो है ही, द डेल्टा कोस्ट which is the largest delta in the world, the Sundarban deltas. So the Sundarban का जो फॉरेस्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? सारे डेजिग्नेशंस है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, वेटलैंड है, मतलब रामसर साइट भी है. इसके अलावा मैंग्रोव्स की लार्जेस्ट प्रोडक्शन है. रॉयल बंगाल टाइगर्स की प्रेजेंस है जो मतलब बहुत कम जगहों पे, सिर्फ 2 ही जगह पे देखा जाता है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. रॉयल बंगाल टाइगर्स, टाइगेरा, टाइग्रिस पेंथेरिस, कुछ ऐसा साइंटिफिक नेम है ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, वो हमारे यूपीएससी में तो नहीं पूछते. दिस वन मोर थिंग इन द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, 2023 में इस टाइगर रिजर्व में पहला बर्ड फेस्टिवल हुआ. तो इसका मतलब है कि ये बर्ड सैंक्चुरी बनने के लिए भी एलिजिबल है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनल पार्क डेजिग्नेटेड है तो इसको हम डिग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नहीं बना सकते, और किसी पर्टिकुलर एनिमल को सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डेजिग्नेट करना पड़ता है. बट द लॉ सेज दैट किसी भी नेशनल पार्क को डिग्रेड करके आप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नहीं बना सकते. ओके, सो दिस वाज अबाउट द मैंग्रोव्स. इसी के नीचे जो आपका न्यूज है, ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स, आप देखो, मिष्टी, अमृत धरोहर एंड पीएम प्रणाम.
सो ये मिष्टी इज अगेन रिलेटेड टू मैंग्रोव्स, ठीक है. सो ये इंडिया का प्रोग्राम है, जितने भी इंडिया में मैंग्रोव्स है उसको अगेन कंजर्व करने के लिए. एंड मिष्टी इज इम्पोर्टेंट, नए मैंग्रोव्स को वो लगाएंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. बाकी जितने भी आपने मैंग्रोव्स प्रोग्राम देख रहे हो जैसे MFF या साइमा, those are conserving the already existing mangroves, but Mishti is to promote afforestation in the mangrove sector. New plants वो mangroves के लगाने वाले हैं, क्योंकि mangroves का जो एरिया है वो इंक्रीज नहीं हुआ है. 2000 अगर आप बात करो 1987 से 2023 तक का डेटा देखोगे, ओनली 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया has been increased, और वो भी in the state of Odisha, Maharashtra, not in West Bengal. West Bengal का जो largest mangroves है सुंदरबंस में 40% has been lost. So that is why afforestation program is launched under the program of this Mishti. Okay. So इसमें क्या करेंगे वो लोग मिष्टी में, किसको बोलेंगे यहाँ पे नए प्लांट्स लगाने के लिए. आपको गवर्नमेंट की एक स्कीम पता है, मनरेगा है ना, और एक स्कीम के बारे में पता है, कैंपा, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एक्ट. तो कैंपा के अंदर मनरेगा को उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया है. ठीक है. कैंपा का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेस्ट लैंड को जो नॉन फॉरेस्ट लैंड की तरह यूज करेगा, ठीक है, उनको कॉम्पेंसेशन देना है. मतलब मेरी फॉरेस्ट लैंड आपने ले ली फॉर नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, so you need to compensate me so that I can find another land for afforestation. तो हमारा यहाँ पे इनिशिएटिव क्या है, एफॉरेस्टेशन मिष्टी में. एंड नेक्स्ट इज मनरेगा. सो मनरेगा वर्कर्स के थ्रू आप इसको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह लॉन्च करोगे. सो इट्स गुड बिकॉज ग्रास रूट पार्टिसिपेशन इसमें होगा एंड पीपल विल बी मेड अवेयर दैट हाउ मैंग्रोव्स आर हेल्पिंग इन देयर लाइवलीहुड. ओके. नेक्स्ट इज योर दिस अमृत धरोहर. आपके नोट्स में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है अमृत धरोहर के बारे में, सो यू कैन राइट वन लाइन. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमृत धरोहर. इट रिलेट्स टू वेटलैंड कंजर्वेशन, वो लिखा है. व्हाट यू नीड टू राइट इज नंबर 1, सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड अराउंड द वेटलैंड. सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड अराउंड द वेटलैंड. एंड सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज related to wetland conservation. Related to wetland conservation. So these two are the objectives. Mishti was for mangroves. Amrit Dharohar is for, so Amrit is the wetland water and Dharohar is your heritage. So उस तरीके से नाम रखा है अमृत धरोहर. एंड ये अमृत धरोहर प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ. कहाँ पर, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी हरियाणा. लिख लो, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी हरियाणा. इट वाज लॉन्च्ड देयर, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी हरियाणा. एंड इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है. यू कैन राइट दैट ऑल्सो, 2 मिनिस्ट्रीज. फर्स्ट कौन सा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC. MOEFCC लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. And the next will be Ministry of Tourism, MOT, Ministry of Tourism. And then the third scheme is PM Pranam. PM Pranam. So PM Pranam क्या है, बहुत इजीली आपको समझा देती हूँ, सुन लो. India is giving fertilizer subsidies. We know that. Fertilizer subsidies में गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च करना पड़ता है. 2022 में 2.25 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं. 2.25 lakh crores. Apart from that, apart from the burden on the exchequer, we have environment pollution in regard to this
fertilizers, because when farmers use these fertilizers, the untreated field water goes to the nearby wetland, rivers or ponds, which again pollute, and algal bloom is there. Algal bloom, I think you must be knowing. फर्टिलाइजर इंड्यूस्ड वाटर ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं तो डेड बॉडी ज़्यादा हो जाती है, एल्गल ब्लूम होता है, एंड द लेक, द रिवर बॉडी इज पोल्यूटेड, द वाटर बॉडी. So because of that, PM Pranam has been launched. So PM Pranam mein they are trying to lesser down the subsidy which is given for the fertilizer. And in this, they have chosen the executive partner as the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट जब ये सब्सिडी कम करेंगे तो उनको एक इसमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा अराउंड 30% का. समझ लो 100 करोड़ रुपए उनको मिले तो 70% ही अगर उन्होंने सब्सिडी दिया और बाकी ऑल्टरनेटिव मेथड्स फार्मर्स को प्रोवाइड किए तो 30% वो बचा रहे हैं, दैट विल बी रिसीव्ड बाय देम. सो दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम टू रिड्यूस द फर्टिलाइजर यूज इन इंडिया, PM Pranam हैज बीन लॉन्च्ड. ओके, सो इसमें दो काम हो जाएगा आपका. एक तो फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, एक्सचेकर का मनी कम यूज होगा टू गिव द सब्सिडी, एंड दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी आप बचोगे. सो मेनली दीज फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, है ना, एंड देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाला सब्सिडी, पोटेशियम, वो तो एक ही में आ रहा है, वो एक ही कंपोनेंट है. एंड देन अदर फर्टिलाइजर्स, डैप सबसे बड़ा आज के दिन में प्रॉब्लम हुआ है. सो दीज आर द things. Okay, so India is the, you can write these data, this will help you. India is the second largest consumer of fertilizers in the world. India is the second largest consumer of urea, not the urea fertilizer, the nitrogen based. So India is the second largest consumer of the urea fertilizer and third largest producer. ठीक है. सो 70% ही हम डोमेस्टिक यूज करते हैं, 30% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. तो आप समझ रहे हो, इंपोर्ट करने के बाद यू आर गिविंग सब्सिडी, सो दैट मेक्स योर करंट अकाउंट डेफिसिट हाई. ठीक है, एंड दैट बर्डन इज शेयर्ड बाय द एक्सचेकर एंड सम, अगर ये बढ़ता चला गया तो फॉरेक्स रिजर्व्स के भी ऊपर बात आ जाएगी एंड इंटरनेशनल रेटिंग आपकी कम हो जाएगी, जो कि अभी इस पॉइंट ऑफ में होना नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, है ना, ट्रिलियन इकोनॉमी जा रही है. ओके, द लास्ट न्यूज आई थिंक, द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया. ठीक है, ग्रीन इंडिया का मतलब क्या है, सोच के बताओ. नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया में क्या कर रही होगी गवर्नमेंट? एफॉरेस्टेशन, ग्रीन कवर को बढ़ाना है. सो इंडिया ने कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं इतने मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ग्रीन कवर के अंदर बढ़ा देंगे. तो इन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर कितना काम हुआ, बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड इन 2014. सो एक RTI डाल दिया केरला से एक एनवायरमेंटलिस्ट ने कि आप बताइए कि ग्रीन इंडिया मिशन में आपने क्या काम किया है. सो RTI की जो रिप्लाई आई उसमें पता चला कि 50% काम भी नहीं हुआ. जितना आपने प्रॉमिस किया था उतना आपने ग्रीन कवर नहीं दे पाए. ओनली वन स्टेट का प्रॉमिस से ज्यादा उन्होंने डिलीवर किया, दैट इज पंजाब. ठीक है, अदरवाइज उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब में फॉरेस्ट कवर नीचे आया है, बढ़ा नहीं है, जो कि फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए था. एक बात और आपको जानना है, ग्रीन इंडिया मिशन इज अंडर द NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. तो उसमें कुछ 7-8 मिशन है हमारे, उसमें से एक हमारा ये ग्रीन इंडिया मिशन है. ओके, डेटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना कि 26,000 हेक्टेयर्स ही किया, लेकिन 53 करना था. So there is a loophole in this thing. Next is your Dhara, driving holistic action for urban rivers. Okay, so there are two things. एक तो इंडिया का अर्बन रिवर्स का एसोसिएशन है और एक इंटरनेशनल है. इंटरनेशनल में इंडिया इज लीडिंग. इंडिया ने ही वो अर्बन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के को लॉन्च किया था और उसमें नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, इन सभी के शहरों ने पार्टिसिपेट किया है. सो नाउ दिस धारा इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट ओनली. सो रिवर्स को क्लीन करके आप अर्बन सिटीज को थोड़ा सा क्या करोगे, कंजर्व करोगे. सो क्लीनिंग ऑफ रिवर
जो है उसका जो मेन अथॉरिटी है दैट इज नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा. सो NMCG में ही इसका काम हो रहा है. बट अदर देन द गंगा रिवर्स ऑल्सो द रिवर्स आर बीइंग टेकन हियर. जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो अराउंड 25-30 रिवर्स थे. अभी मोर देन 100 रिवर्स इसमें पार्टिसिपेंट है. मतलब मोर देन 100 सिटीज इसमें पार्टिसिपेंट है. तो अर्बन सिटीज रिवर्स के थ्रू ठीक की जाएगी. सो इसका जो नेक्स्ट मीटिंग है धारा 2024 that will be held in Gwalior. Okay, so they have chosen the river Gwalior. So ग्वालियर के आसपास कौन सी रिवर फ्लो करती है? चंबल. Then चंबल goes to Rajasthan and Rajasthan में it flows through कोटा. कोटा के बाद it is just flowing on the borders of Rajasthan and Madhya Pradesh, and after that it enters Uttar Pradesh and joins the river Yamuna. So Chambal is the major tributary of Yamuna. Actually, the river which is getting mixed in Prayagraj with Ganga is not Yamuna. It is Chambal only. Because Yamuna का पानी खत्म हो जाता है दिल्ली के बाद. The river water which you see in Mathura, Agra and Tundla and then Hamirpur and then into Prayagraj, that is the water of Chambal, not the water of Yamuna. So मध्य प्रदेश के विंध्यन रेंज से जो भी रिवर्स नॉर्थ की तरफ चल रही हैं, ऐसे ब्लैंक लग रहे हो यार. So if this is the map of Madhya Pradesh, this is how the Yamuna is flowing in Uttar Pradesh. ठीक है. So this is your विंध्यन रेंज. तो विंध्यन रेंज से बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं जैसे चंबल, पार्वती, काली सिंध एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है. चलो विल डू इट हियर. सो जितने भी रिवर्स ऊपर जा रहे हैं, चंबल, काली सिंध, पार्वती, these are the tributaries of Chambal itself. Then we have rivers of Bundelkhand also which are going also northward. Ken, Betwa, Dhasan, all these rivers, they all join the Yamuna river. ठीक है. So majorly यमुना के जो ट्रिब्यूटरी है, जो रिवर्स वाटर मिल रहा है उसको, that is from मध्य प्रदेश, विंध्यन रेंज. So I hope it is done. Any doubt? Any questions in regard to the whole discussion? Anything? Nothing? So वो माइंड मैप याद रखना है आपको. 72, 1992, ऑल द 4 हेड्स और उनके नीचे COPs. सो अब जब भी कभी COP हो चेक करो ये CBD का COP है या UNFCCC का है या एजेंडा 21 का है या UNCCD का है. देन रीड, तब आपको समझ में आएगा उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है. चलो, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट. Yes.